हेलो मेरे पढ़ाकुओं, कैसे हो? बढ़िया। Last time we have studied about Western Bridge and we have solved one example related to that. Today we will solve one numerical related to the concept of meter bridge. मीटर ब्रिज के बारे में लास्ट टाइम जो पढ़े थे उसी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.10। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.10। First case, in a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the end A. From this end A, balance point is found to be at a distance 39.5 centimeter. It means what is given? L1. तो हमारे पास L1 की वैल्यू है L1 is equal to 39.5 centimeter from the end A when the resistance Y is of 12.5 ohm. Value of resistance Y is given Y, that is 12.5 ohm. Determine the resistance of X. So here unknown resistance, that is X, known standard resistance, that is Y. मीटर ब्रिज ने हमने जिसको R और S लिया था, यहाँ पे उसको ले लेना है X एंड Y. वैल्यू ऑफ Y इज गिवन टू अस एंड वैल्यू ऑफ X वी हैव टू फाइंड. तो पहले हमें पूछ रहे हैं डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X. Why are the connections between the resistors in a Western bridge or meter bridge made of thick copper strips? Why these copper strips are thick? पहले हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं Why these metallic strips are thick. In balanced condition, X by Y is equal to L1 upon 100 minus L1. X by Y is equal to L1 upon 100 minus L1. Therefore, X is equal to L1 upon 100 minus L1 into Y. What is the value of L1? 39.5 upon 100 minus L1. 100 minus 39.5, that is 60.5, into value of Y, that is 12.5. 39.5 into 12.5 divided by 60.5, 8.2 ohm. So value of X, that is 8.2 ohm. क्या मिला हमें? X 39.5 into 12.5 upon 60.5, that is 8.2 ohm. So value of X that is available to us, X हमें मिल गया. अब क्या पूछ रहे हैं? Why are the connections between the resistors in a Western or meter bridge made of thick copper stripes? Why these metallic stripes are very thick? ऐसा क्यों बोले? Because here if we don't take these thick metallic strips, if we take thin metallic strips, then value of resistance of metallic strip will be high. By taking thick metallic strips, we can minimize the resistance of these metallic stripes. As area increases, resistance decreases. Already we have studied the formula of resistance. R is equal to rho L by A. Resistivity, that is fixed. Length we have to use according to experiment. If we take thick metallic strips,
then area increases. If area is more, then resistance will be less. So to minimize the resistance, we have to use thick metallic strips. If resistance of metallic strips is not negligible, then we have to consider the resistance of metallic stripe in this formula. It means this resistance is in series with X, this resistance in series with Y. तो हमें इनके रेजिस्टेंस को भी ऐड करना पड़े. We are taking thick metallic strips because we want to minimize the resistance of this metallic strips. कनेक्शन करना है इसके साथ, तो कम से कम रेजिस्टेंस वाली मेटालिक स्ट्रिप यूज़ करनी चाहिए. तो उसी की वजह से हम थिक मेटालिक स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं. टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस वी यूज़ थिक मेटालिक स्ट्रिप्स. चलो ये समझ में आ गया. अब आते हैं बी पे. क्या बोल रहे हैं बी में? डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबोव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज. मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या कर देना है? y, और यहाँ पे y की जगह क्या कर देना है? x. इफ पोजिशन ऑफ x एंड y इज इंटरचेंज, देन व्हाट विल हैपन? डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज. तो बताओ कि बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा कि नहीं? अगर इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है तो L1 और 100 - L1 की पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी. आइए देखते हैं. अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y बाय x इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 - L1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 12.5. x that is 8.2. L1 upon 100 minus L1. Therefore L1 into 8.2 is equal to 100 into 12.5, that is 1250 minus 12.5 L1. 8.2 L1 plus 12.5 L1 is equal to 1250. Therefore L1 is equal to 12.5 plus 8.2 is equal to 1250. Therefore L1 is equal to 1250 upon 12.5 plus 8.2, that is nothing but 60.5 सेंटीमीटर. देखिए जब पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो L1 और 100 माइनस L1 की पोजीशन भी इंटरचेंज होंगे. पहले L1 क्या था? 39.5 और 100 माइनस L1 क्या था? 60.5. जब हमने y की और x की पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो L1 क्या हो गया? 60.5. 100 माइनस L1 क्या हो जाएगा? 39.5. So if we change the position of x and y, then this बैलेंस पॉइंट विल चेंज. मतलब जो पहले की केस में जो L1 था वो फिर क्या हो जाएगा? 100 माइनस L1, और 100 माइनस L1 था वो क्या हो जाएगा? L1. क्या समझ में आया? बिल्कुल परफेक्ट. चल थर्ड केस में क्या पूछ रहे हैं? व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज. मतलब एक बार हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाए फिर क्या करना है? गैल्वेनोमीटर को यहाँ से उठा के यहाँ पे और सेल को यहाँ से उठा के यहाँ पे. वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? क्या गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगा देंगे और बैटरी को यहाँ पे, तो क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट दिखाएगा? एक बार अगर बैलेंस पॉइंट मिल गया और उसके बाद अगर गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में ही रहने वाला है. दिस ब्रिज विल रिमेन इन बैलेंस कंडीशन एंड गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन. नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज कर देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमें क्या करना है? x अपॉन L1. फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x अपॉन L1 इज इक्वल टू y अपॉन 100 माइनस L1. पहले क्या करते थे? x बाय y इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड ओवर हियर.
when we are connecting galvanometer between A and C and cell between B and D, then the formula will become x upon L1 is equal to y upon 100 minus L1. Then also x upon L1 is equal to y upon 100 minus L1 will remain same. Therefore, the bridge is said to be in balanced condition. So what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Nothing will happen. Meter bridge will remain in balanced condition when we interchange the position of galvanometer and battery when balance point is achieved. Would the galvanometer show any deflection? Galvanometer will not show any deflection. No current will flow through the galvanometer. तो कोई galvanometer deflection दिखाने वाला नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर? पहले तो मुझे बता, पोटेंशियोमीटर टॉपिक पढ़ने वाला है तो इसका यूज़ क्या है वो पढ़ना चाहिए. काम क्या आएगा ये? जैसे व्हिटन ब्रिज का काम क्या था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वी यूज व्हिटन ब्रिज. व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to find value of EMF of cell. To find the value of EMF of a cell we use potentiometer. तो आप बोलोगे सर उसको तो वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते हैं. When you connect any battery having some internal resistance with voltmeter, then what will happen? दिस वोल्टमीटर, जब वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है? दिस वोल्टमीटर हैज़ सम रेजिस्टेंस. इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो मान लो कि सेल के साथ कुछ रेजिस्टेंस ही कनेक्ट हो गया, तो जैसे ही रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा तो सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो. एंड व्हेन करंट विल फ्लो एट द टाइम दिस वोल्टमीटर विल मेजर टर्मिनल वोल्टेज. क्या मेजर करेगा? टर्मिनल वोल्टेज. याद है ना टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला? जब सेल को किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाए, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. करंट फ्लो होगा तो वट एवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR. सो दिस वोल्टमीटर विल मेजर टर्मिनल वोल्टेज, नॉट EMF. वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो क्या मेजर करेगा? वो मेजर करेगा टर्मिनल वोल्टेज. यूजिंग वोल्टमीटर वी कांट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ EMF, क्योंकि हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. अगर तुम्हें वोल्टमीटर से EMF चाहिए तो दो ही पॉसिबिलिटी है. या तो R आप जीरो कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? जीरो. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है, क्योंकि कुछ मटेरियल यूज़ किया जाता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा. इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो ये टर्म जीरो नहीं होगा. तब तक V इज इक्वल टू E नहीं होगा. हमें क्या चाहिए? V इज इक्वल टू E. और V इज इक्वल टू E चाहिए. एक और कंडीशन थी, कौन सी? ओपन सर्किट कंडीशन, याद है? जिसमें क्या होना चाहिए? I इज इक्वल टू जीरो. करंट जीरो होना चाहिए. अगर करंट जीरो हो जाए तो भी क्या बन सकता है? V इज इक्वल टू E. अगर करंट ही जीरो हो जाएगा तो वोल्टमीटर रीडिंग ही नहीं दिखाएगा, डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाएगा, क्योंकि करंट नहीं फ्लो होगा तो ये रीडिंग नहीं ले पाएगा. तो करंट भी जीरो नहीं हो सकता. सो यूजिंग वोल्टमीटर we cannot find exact value of EMF. So potentiometer is generally used to find the value of EMF. ये एक डिवाइस ऐसी है जिससे हम EMF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो पूरा एक प्रोसेस है, उसे हमें समझना है. There are two practical applications of potentiometer. One for the comparison of EMFs and second to find internal resistance of cell we use potentiometer. तो ये इसकी दो एप्लीकेशन है. पोटेंशियोमीटर से ये चीज़ें की जा सकती हैं. तो चलो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब वोल्टमीटर की जगह हमें क्या करना है? पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है EMF फाइंड करने के लिए. क्या फाइंड करने के लिए? EMF ऑफ द सेल वी कैन फाइंड यूजिंग दिस डिवाइस. अब कैसे करना है अब उसके लिए चर्चा करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर पे. अभी आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर. क्या होता है पोटेंशियोमीटर में? दिस पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस इन विच वी कनेक्ट वन
main battery B, and one rheostat is connected in series with this battery. Positive terminal of battery is connected with A, and rheostat is connected with one key K1, and this key is connected with point C. What is there between A and C? Between A and C we have very long wire. Here this length, that is 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, like this. मतलब very long wire we have to take. वेस्टर्न ब्रिज में हम कैसा वायर लेते थे? मीटर ब्रिज में याद हो तो, मीटर ब्रिज में हम लेते थे 1 मीटर का वायर. यहाँ पे हम उससे भी बड़ा वायर लेने वाले हैं, तो 4 मीटर का वायर यूज़ किया जाता है, 6 मीटर का यूज़ कर सकते हैं, 10 मीटर का वायर यूज़ किया जाता है. तो पोटेंशियोमीटर में हम बड़ा वायर यूज़ करते हैं. हियर वी मेक pieces of wire, and these pieces of wire are connected with thick metallic strips. So these are nothing but thick metallic strips. इन सारे वायर को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? थिक मेटालिक स्ट्रिप्स. जैसे हम मीटर ब्रिज में कनेक्ट करते थे, वैसे ही यहाँ पे इन सब का कनेक्शन के लिए, इन सब के कनेक्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया? मेटालिक स्ट्रिप्स. ये वायर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए इसे सीधा कनेक्ट नहीं किया जा सकता. अगर 5-6 मीटर का वायर सीधा ही ले लें, अगर उसके पीस नहीं किए जाएं, तो क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा. इट विल ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस, उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी लेबोरेटरी में. तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो 4 मीटर का वायर होता है उसके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं. 6 मीटर का वायर है तो 6 टुकड़े कर दो. फिर उनको कैसे कनेक्ट करना है? ऑल द पीसीस ऑफ वायर्स आर कनेक्टेड विद दिस थिक मेटालिक स्ट्रिप्स. तो ऐसा करने से क्या होगा? वो उतनी जगह यूज़ नहीं करेगा. छोटी सी जगह में भी हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं. हाँ, हम जानते हैं वोल्ट मीटर तो बहुत ही कम जगह यूज़ करता है, पर उससे थोड़ी ज़्यादा जगह यूज़ करेगा, बट इट विल गिव अस एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ. तो ये बेनिफिट है हमें पोटेंशियोमीटर यूज़ करने का. सो दिस वे वी यूज़ पीसीस ऑफ वायर. वेरी लॉन्ग वायर वी हैव टू यूज़ इन दिस इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर. This is called a driver cell. EMF of driver cell should be greater than E1 and E2. We want to compare this EMFs. इनको कंपेयर करना है, तो इनके EMF से इसका EMF ज़्यादा होना चाहिए. Then only this device will work. क्योंकि इसी से सब काम होने वाला है, इसी से करंट फ्लो होने वाला है. तो EMF of this cell should be greater than E1 and E2. जिनको कंपेयर करना है, जिनका EMF कंपेयर करना है, उससे भी ज़्यादा EMF किसका होना चाहिए? मेन बैटरी का. व्हाट इज द यूज ऑफ रियोस्टेट? रियोस्टेट इज यूज टू मेंटेन स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट. टू मेंटेन स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट वी यूज रियोस्टेट. रियोस्टेट इज नथिंग बट वेरिएबल रेजिस्टर. इसकी रेजिस्टर की वैल्यू चेंज की जा सकती है. बाय एडजस्टिंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन गेट स्टेडी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन ए एंड सी. ए और सी के बीच में हमें स्टेडी करंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट. व्हेन की K1 is open, at that time no current will flow. When key K1 is closed, at that time what will happen? ध्यान से देखिए. मान लो कि ये क्या है? A और ये क्या है? C. What is connected between A and C? इसको भूल जाओ, जिसको कंपेयर करना है उसको भूल जाओ. A को कनेक्ट कर लेते हैं हम. किससे कनेक्ट करना है? बैटरी से. एंड बैटरी इज कनेक्टेड विथ रियोस्टेट, एंड रियोस्टेट इज कनेक्टेड विथ की लाइक दिस. When key K1 is closed, at that time what will happen? Some current will flow. Let me take this current I. Yes or no?
current flows from higher potential to lower potential, current flows from higher potential to lower potential. तो potential at point A must be greater than potential at point C. यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ही करंट ऐसे फ्लो होगा. तो करंट A to C कब जाएगा? when potential at A is greater than potential at point C. So there will be some potential difference between A and C. Yes or no? Potential difference between A and C. चलो मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या ले लूँ? 0 और यहाँ पे क्या ले लिया? V. What is the length of this wire? I am taking length of this wire to be L. क्या लेंथ ले ली मैंने? L. तो between A and C potential difference that is V. So here we can write potential difference V is equal to, what is the formula? Electric current I into resistance of wire AC. Yes or no? ये जो वायर कनेक्ट किया हुआ है उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा. चलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 points A and C, that is V. So V is equal to IR according to Ohm's law. Therefore V is equal to I. What is the formula of resistance? Here we have to take wire of uniform cross sectional area. So area will be same. Resistance is nothing but rho L by A. So IR rho L by A. Yes or no? Resistance R is equal to rho L by A. Therefore we can write V is equal to I rho by A into L. Current flowing through this is constant. Steady value of current is maintained using this device. So I, that is constant. Resistivity of wire, that is constant. वो कोई बदलने वाली नहीं है. A, cross sectional area, we have taken uniform cross sectional area of the wire. So this thing is nothing but constant. This constant I am taking V is equal to phi into L. What I am taking? Phi. What is phi? Phi is equal to I rho by A. Correct? I rho by A. क्या है phi? अभी बताता हूँ मैं. चलो. This thing is constant. Suppose if I want to find potential difference between A and D. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटता जा रहा है. यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? V. जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ पोटेंशियल घटता जा रहा है. क्या हो गया आगे? 0. तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल कम. इस लेंथ को मैं नाम दे देता हूँ L डैश. ये सुन, क्या नाम दे दिया? L डैश. देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D? दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू phi L dash. Yes or no? Because phi that is constant, I rho by A that is constant. So potential difference V is equal to phi L dash. Because here for length L, what is the potential difference? V, right? So for unit length, what will be the potential difference? For unit length, मान लें कि 1 सेंटीमीटर का वायर लूँ तो क्या हो जाएगा? L सेंटीमीटर के लिए क्या है? V. तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा? V by L. Yes or no? So what will be the potential difference across AD for length L dash? L dash के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए V by L, तो L dash के लिए कितना? V by L into L dash. But what is V by L? What is V by L? Tell me. From this, V by L is nothing but phi. V by L is nothing but phi. So here we can write for length L dash potential difference, that is potential difference will be phi into L dash. V dash is equal to phi L dash. So what is phi? Phi is nothing but potential per unit length. Potential per unit length.
that is called potential gradient. Potential difference per unit length, V, that is potential difference. Potential difference per unit length is called potential gradient. इसे क्या बोला गया है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. याद हो तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. स्टैंडर्ड 11 में हम पढ़े. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? वोल्ट पर मीटर. यूनिट क्या बनेगा? वोल्ट पर मीटर. So phi that is nothing but potential gradient. So phi is potential per unit length. क्या समझ में आ गया? तो L डैश के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? phi L डैश. मान लो कि मुझे कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. ये डिस्टेंस क्या है? x. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? phi इंटू एक्स. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? phi इंटू एक्स. For unit length, what is the potential difference? Phi. So V by L is nothing but phi. So for L dash length, potential difference that is phi L dash, and for distance x, phi x. क्या समझ में आया? एकदम क्लियर है. परफेक्ट. From this, principle of potentiometer is clear to us. Potential difference between any 2 points on the wire, potential difference between any 2 points on this wire is directly proportional to distance between that 2 points on the potentiometer wire. What should be the principle of potentiometer? What is the principle of potentiometer? Potentiometer का principle बता रहा हूँ, ध्यान रखें. Potential difference between any 2 points on the wire is directly proportional to distance between that 2 points on the potentiometer wire. तो potential difference कैसे मिल जाएगा? It is directly proportional to distance between that 2 points on the wire. That is the principle of potentiometer. वायर पे कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो 2 पॉइंट के डिस्टेंस पे. डिस्टेंस बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा. क्या ये चीज़ क्लियर है? एकदम परफेक्ट. चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज नाउ क्लियर टू यू. किस तरह का सेटअप होता है ये क्लियर हो गया. अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है. क्या होती है एप्लीकेशन, कैसे हम यूज करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर को, हाउ इट वर्क्स, हाउ कैन वी कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ 2 cells, how can we find internal resistance of cell, that things we will study in next lecture. जैसे कि आपने प्रिंसिपल समझ लिया है, अब एप्लीकेशन समझनी है पोटेंशियोमीटर की. बट अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. आई एम स्टॉपिंग हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.